Hi friends, I am back with a new video. In this video, I'll be talking only about the basics of the Income Tax Act. I think every person paying income tax should know about these basics. So let's start with understanding the difference between the financial year and the assessment year. So the financial year and assessment year, these two terms are being used by the income tax authorities almost everywhere. एक छोटा एग्जांपल ले लो, जब आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करते हो उसमें भी कॉलम्स है ये दोनों फिल करने की. क्लाइंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं एंड कॉल करते हैं ऑफिस में, दे आस्क कि कौन से कॉलम में क्या आएगा. सिंपल है, फाइनेंशियल ईयर इज़ द ईयर इन विच यू अर्न द इनकम एंड असेसमेंट ईयर इज़ ईयर फॉलोइंग दैट. So for current year, your financial year would be 1920 and the assessment year would be 2021. So next time when you pay your taxes, please do not make such silly mistakes. Now moving to income tax slabs. Every person getting taxed must know the rate at which they are being taxed. So in this budget, the finance minister has come up with a new regime where the individual and HUF have been given an option to pay income tax at lower rates, but the condition is that they should forego the deductions and exemptions they claim. So you might be knowing you get interest on housing loan as a deduction, LIC, PPF, ये सब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये भी आपको डिडक्शन मिलता है. सैलरी क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन है 40,000 का, प्रोफेशनल टैक्स है और बहुत सारे दूसरे अलावेंसेस है. ये सब आप फोरगो कर दोगे तो आपके पास ऑप्शन है कि आप न्यू रिजाइम में टैक्स कर अपने आप को टैक्सेबल कर सको एंड लोअर रेट्स पे टैक्स भरो. But you have to forego these deductions. Both the rates of the old and new regime have been mentioned in the comment section. You can refer there. So now moving to advance tax, every person having a tax liability of more than rupees 10,000 is supposed to pay advance tax in installments. So आपको ध्यान रखना है कि आप पूरा टैक्स लाइबिलिटी मार्च तक पे कर दो. अगर आप ये ड्यू डेट्स मिस करते हो तो इंटरेस्ट लगता है एंड कभी कभी वो इंटरेस्ट इतना बढ़ जाता है कि आपका टैक्स अमाउंट उसके साथ बढ़ जाता है एंड अननेसेसरी एक्सपेंस आपको भरना पड़ता है. सो ये अननेसेसरी एक्सपेंस ना हो ये तो आप अपना एडवांस टैक्स टाइम पे कीजिए एंड ड्यू डेट्स को फॉलो करिए. सो सारे ड्यू डेट्स मैंने कमेंट सेक्शन में मेंशन किए हुए हैं. नाउ मूविंग टू चैप्टर 6 ए डिडक्शंस. ऑल ऑफ अस माइट बी नोइंग कि हम टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमें डिडक्शन मिलता है हमारे टैक्सेबल इनकम के सामने. सो द टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट इंक्लूड LIC, PPF, सर्टन टर्म डिपॉजिट्स विद बैंक, मेडिक्लेम. इन सारी चीज़ों की आपको रिसीप्ट संभाल के रखनी है. अगर आपके घर पे कोई ऐसा डिपेंडेंट पर्सन है जिनको ऐसे डिजीज़ है जो एक्ट में मेंशन किए हुए हैं तो उन सारे डिजीज़ के जो मेडिकल एक्सपेंसेस है उनके बिल्स आप संभाल के रखिए, प्रिस्क्रिप्शन संभाल के रखिए, डॉक्टर के रिपोर्ट संभाल के रखिए. ये सारी चीज़ें एज अ प्रूफ यूज़ कर सकते हैं टू क्लेम डिडक्शंस. सारी चीज़ों के रिसीप्ट संभाल के रखिए और अपने CA को सबमिट करिए बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर नेसेसरी टू फाइल योर रिटर्न. Now moving to individual and HUF who have a turnover of rupees less than 2 crores. So it is not necessary to conduct audit always. If your turnover is less than 2 crores, you can opt for presumptive scheme. इसमें you have a option to tax a certain percentage of your turnover as your taxable income. If you do so, you are not supposed to conduct audit. But for every other person, the limit is 1 crore. But now in this budget, the finance minister has come up with a new amendment which says the audit limit would be 5 crores if your total cash receipts and cash payments are less than 5% of your total receipts and total payments. So अगर आप ये conditions fulfill कर दो तो योर ऑडिट लिमिट वुड बी 5 crores. सो जो लोग के कैश ट्रांजैक्शंस बहुत कम है या बिल्कुल भी नहीं है उन लोगों के लिए ये टर्नओवर लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगा एंड आप लोग के लिए ऑडिट लिमिट वुड बी 5 crores. सो कमिंग टू TDS, इंडिविजुअल और HUF जो लोग ऑडिट में है एंड जो लोग ऐसे एक्सपेंडिचर्स करते हैं जैसे सैलरी पे करना, प्रोफेशनल फीस, कमीशन, ब्रोकरेज, रेंट, कॉन्ट्रैक्टी फीस,
तो आपको ये सारे एक्सपेंसेस पे करते वक्त TDS डिडक्ट करना ध्यान रखना है. अगर आप नहीं करते हो तो 30% ऑफ सच एक्सपेंडिचर वुड बी डिसअलाउड. सो हर एक्सपेंस का एक थ्रेशोल्ड लिमिट है और एक रेट है जिस पे आपको TDS डिडक्ट करना है. सारे रेट्स और थ्रेशोल्ड लिमिट मैंने कमेंट सेक्शन में मेंशन किए. ऑल्सो दूसरे लोगों के लिए, फॉर्म्स और कंपनीज़ के लिए कंपलसरी है TDS डिडक्ट करना, वो ऑडिट में हो या ना हो. एंड फॉर इंडिविजुअल्स एंड HUF हु आर नॉट इन ऑडिट, जो नॉर्मल बिजनेस नहीं करते बट सैलरीड क्लास है, बट वो रेंट पे कर रहे हैं बहुत हायर अमाउंट का, या उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज किए है, तो देर आर न्यू सेक्शंस जिसमें TDS comes into picture. So all of these have been mentioned in the comment section. Please refer them. Now moving to cash transaction. People ask me कि मैं कितना कैश रिसीव कर सकता हूँ. So you cannot receive more than rupees 2 lakhs from a single person for a single transaction and for a single event. एक जन से आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा रिसीव नहीं कर सकते हो, एक ट्रांजैक्शन के लिए रिसीव नहीं कर सकते हो. मतलब पार्ट पेमेंट्स में भी कैश में अगर 2 लाख से ज़्यादा आ रहा है एक ट्रांजैक्शन के लिए तो भी नहीं चलेगा, और एक इवेंट के लिए भी नहीं चलेगा. इवेंट का एग्जांपल मैं आपको शादी दे सकती हूँ. जैसे इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज होती है, उनको लमसम पेमेंट मिलता है. अगर आप 2 लाख से ज़्यादा कैश में रिसीव करते हो तो वो नहीं चलेगा. इसके सीरियस रिपरकशंस है. पहले तो जो भी आपको कैश में मिला है वो आपका इनकम ट्रीट होगा. उसके अलावा देर विल बी 100% पेनल्टी. सो सपोज इफ़ यू आर रिसीविंग 3 lakhs इन कैश, पूरा 3 लाख आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा एंड वो इनकम भी ट्रीट होगा. सो यू हैव टू टेक केयर एंड नॉट रिसीव मोर देन 2 lakhs फ्रॉम एनी वन. नाउ कमिंग टू कैश एक्सपेंडिचर, इफ़ यू pay more than rupees 10,000 otherwise than by an account pay check or electronic fund transfer, then the whole of the expenditure will be disallowed. 10,000 से ज़्यादा किसी को भी कैश में पे नहीं करना है एक दिन में, नहीं तो आपका पूरा एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा. बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि उनके एम्प्लॉय की बैंक अकाउंट नहीं है इसलिए वो कैश में सैलरी दे रहे. नहीं चलेगा. मेक श्योर ही ओपन्स अ बैंक अकाउंट एंड ओनली पे बाय अकाउंट, पे चेक और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र. नाउ पीपल आस्क मी अ डाउट कि मैं कैश में असेट परचेज कर सकता हूँ क्या? नहीं, यू कैन नॉट परचेज असेट ऑफ मोर देन रुपीज़ 10,000 इन कैश, बिकॉज फिर उसका कॉस्ट इग्नोर हो जाएगा और दूसरे बेनिफिट्स जैसे डेप्रीसिएशन आपको नहीं मिल पाएगा. सो प्लीज़ पे इन चेक ओनली. सो नाउ मूविंग टू गिफ्ट. मैनी पीपल हैव अ कॉमन डाउट कि रिलेटिव से गिफ्ट मिला तो गिफ्ट टैक्स लगता है क्या? नहीं, रिलेटिव से गिफ्ट्स आर एग्जेम्प्ट. रिलेटिव्स में आपके स्पाउस आ गए, आपके मम्मी पापा आ गए, आपके भाई बहन आ गए, इन सारे लोगों के स्पाउस आ गए, आपके स्पाउस के मम्मी पापा आ गए, उनके भाई बहन आ गए और उन सारे लोगों के स्पाउस आ गए. आप दोनों के मम्मी पापा के भाई बहन भी इसमें आ गए. सो इफ़ यू रिसीव एनी अमाउंट फ्रॉम सच पीपल इट वोंट बी टैक्सेबल, बट यू हैव टू टेक केयर कि ये ट्रांजैक्शंस बार बार नहीं होने चाहिए. और अगर कोई बड़ा अमाउंट आपको मिल रहा है तो टेक केयर ऑफ मेकिंग अ गिफ्ट डीड. सो ये सारी मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई है. इनके रिपरकशंस बहुत हो सकते हैं. मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि आपको पता हो कि अगर आप ये ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो इनके रिपरकशंस हो सकते हैं. इनके रिपरकशंस समझने के लिए यू आस्क योर CA और टैक्स कंसल्टेंट. दे विल एक्सप्लेन यू in a better way, or if you have any doubts you can DM me also. Take care. Bye.